بات ہے 2009 کی، جب امریکہ کے شہر جارجیا کے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس تیزی سے خالی ہونے لگے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، بلکہ ایسے کیسز میں دن بدن اور اضافہ ہونے لگا۔ ان لوگوں میں امریکہ کے پاورفل بزنس مین بھی شامل تھے جن کے اکاؤنٹس خالی ہو رہے تھے۔ ان دنوں ہوتا کچھ یوں تھا کہ امریکہ کے شہر جارجیا کا جو بھی سٹیزن اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروانے جاتا تو کچھ ہی منٹس کے بعد اس کو اس کے بینک اکاؤنٹ خالی ہونے کا میسج ریسیو ہوتا۔ امریکہ کے شہر جارجیا کے پولیس بھی یہ جان کر شوق میں تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جارجیا کی پولیس کے پاس ایک ایسا کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ کیس ان سے سالو نہیں ہو سکتا، اور اس کیس کو سالو کرنے کی ان کی اب اوقات نہیں رہی۔ دراصل اب جارجیا کی پولیس کو مائکروسافٹ، جو کہ ایک بہت بڑی ٹیک کمپنی تھی، اس کے بینک اکاؤنٹس خالی ہونے کی شکایت رپورٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد جارجیا کی پولیس نے یہ کیس ایف بی آئی کو ہینڈ اوور کر دیا۔ یوں اب اس کیس میں انٹری ہوتی ہے ایف بی آئی کی۔ جب ایف بی آئی نے اس کیس پر کام کرنا شروع کیا تب تک تقریباً 60 ملین کمپیوٹرز ہیک ہو چکے تھے، اور اب تقریباً 3 سال کا وقت گزر چکا تھا، اور اس وقت تقریباً امریکہ کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ ہیکر ہے کون؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہیکر اور کوئی نہیں بلکہ حمزہ بینڈلاج تھا، جس کا تعلق الجیریا سے تھا، جسے ہیکنگ کی دنیا ہیپی ہیکر اور اسمائلی ہیکر کے نام سے بھی جانتی ہے، کیونکہ اس کی ہر تصویر میں یہ مسکراتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ اپنی ہر تصویر میں مسکراتا ہوا کیوں دکھائی دیتا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر ملے گا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ حمزہ بینڈلاج کی مکمل کہانی جان سکیں کہ کیسے ایک 20 سال کے لڑکے نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ہیکنگ اٹیک سے ہلا کر رکھ دیا۔ اب تقریباً 3 سال کا وقت گزر چکا تھا، اور امریکہ جیسے سپر پاور دیش کے تمام سیکیورٹی آفیشلز اس ہیکر کو پکڑنے میں ناکام رہے تھے، مگر دوسری طرف حمزہ بینڈلاج رکنے والوں میں سے تھوڑی نہ تھا۔ وہ مزید اپنے ہیکنگ اٹیکس میں تیزی لا رہا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایف بی آئی کے ایک امپلائی کو اس کے کمپیوٹر پر ایک ای میل ریسیو ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم جس ہیکر کو تلاش کر رہے ہو وہ ہیکر میں ہوں۔ اس کے بعد تو ایف بی آئی والوں کا غصہ آسمان چھونے لگا، کیونکہ اب وہ اس ہیکر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ جو ای میل ایف بی آئی کے امپلائی کو ریسیو ہوا تھا وہ ڈارک ویب کے ذریعے سینڈ کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس ای میل کو ٹریک کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ بس اسی وجہ سے ایف بی آئی والوں کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ اب تک حمزہ بینڈلاج امریکہ سے تقریباً 3 کھرب 5 ارب 66 کروڑ اور 6 لاکھ روپے لوٹ چکا تھا۔ اب حمزہ بینڈلاج ایف بی آئی کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اور اسے اب پکڑنا ایف بی آئی کے لیے عزت کا سوال بن چکا تھا، جسے وہ ہر صورتحال میں پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اسے اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اتنی بڑی رقم چوری کرنے کے بعد اب انٹرپول کی نظریں بھی حمزہ بینڈلاج کو پکڑنے کے تعاقب میں تھیں، اور اب امریکہ کی ساری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ہیکر حمزہ بینڈلاج کو پکڑنے کے لیے بے چین تھیں، مگر ہمیشہ سے حمزہ بینڈلاج اپنے تمام دشمنوں کی پہنچ سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ یہاں مزے کی بات یہ تھی کہ حمزہ بینڈلاج کو اپنا تمام پیچھا کرنے والوں کی باریک سے باریک ڈیٹیل کے بارے میں بھی پتا تھا، مگر دوسری طرف اسے پکڑنے والے اس کا اب تک نام بھی نہیں جان سکے تھے، اور انہیں اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جس ہیکر نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں آخر کار وہ ہیکر ہے کون۔ یوں اب ایف بی آئی نے اپنی ساری طاقت لگا دی کہ وہ حمزہ ہیکر تک پہنچ سکیں۔ اب انہوں نے دنیا بھر کے تمام بلیک ہیٹ ہیکرز کی ڈیٹیل نکالنا شروع کر دی۔ یوں کرتے کرتے انہیں حمزہ ہیکر کے بارے میں ایک بہت ہی سالڈ کلیو ملا۔
जिससे उनको पता चलता है कि अल्जीरिया में एक हैकर है जिसका नाम है हमजा। उसका हैकिंग स्टाइल उस हैकर से काफी मिलता जुलता है जिसने FBI वालों की नींदें हराम कर रखी हैं। तो फिर इसके बाद FBI और इंटरपोल वाले उस हैकर को अपना टारगेट बनाते हैं। अब FBI वाले अपने कुछ एजेंट्स अल्जीरिया रवाना करते हैं ताकि उस अल्जीरियन हैकर का मुकम्मल बायोडेटा हासिल किया जा सके। तो वहाँ उन एजेंट्स की टीम को पहुंचकर पता चलता है कि हमजा एक 20 साल का अल्जीरियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको बचपन से ही कंप्यूटर की कोडिंग के साथ खेलना बहुत पसंद है, और जितना उसे कंप्यूटर की कोडिंग के साथ खेलना पसंद है उससे ज्यादा उसे मैथमेटिक्स के मुश्किल तरीन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। फिर उन्हें एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी वजह से उनका शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें पता चलता है कि हमजा बैंडलाज एक हैकर भी है जो कि कुछ ही मिनट्स के अंदर मुश्किल से मुश्किल तरीन पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। इसके बाद तो FBI की टीम का शक अब यकीन में बदल जाता है, मगर अब वो इसे सिर्फ बायोडेटा और कुछ मालूमात होने की बुनियाद पर पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी मजीद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो उसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब FBI की टीम वेट में थी तो बस इस बात के वेट में थी कि उन्हें हमजा बैंडलाज के खिलाफ कुछ सॉलिड सबूत मिल जाए ताकि वो उसे आराम से पकड़ सकें और वो उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाएं जिसमें वो आराम से फंस सके, क्योंकि FBI वाले भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें एक ब्लैक हैट हैकर को पकड़ना है तो उसी की तरह ही उन्हें सोचना होगा। इसके बाद FBI वाले बनाते हैं एक मास्टर प्लान जिसके जरिए हमजा बैंडलाज को उनके जाल में फंसाया जा सके। वो अपनी टीम में से अपने एक एजेंट को हमजा बैंडलाज के पास भेजते हैं और ये FBI का एजेंट हमजा बैंडलाज के सामने एक हैकर बन के जाता है, और वो एजेंट हमजा बैंडलाज को इतने जोरदार तरीके से कन्विंस करता है कि हमजा बैंडलाज को उस पर जरा भी शक नहीं होता। वो अपनी हैकिंग स्किल्स का उसे डेमो दिखाता है जिससे हमजा उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो FBI का एजेंट हमजा के साथ मिलकर हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करता है ताकि वो हमजा का मजीद भरोसा जीत सके। यूं हमजा के साथ मिलकर हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करते करते उसके हाथ बहुत सॉलिड किस्म के सबूत लगते हैं। उस FBI के एजेंट को ये पता चलता है कि हमजा अकेला ही नहीं जो कि अमेरिका वालों की नींदें हराम करके रखे हुए है, बल्कि इसके हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए इसके साथ एक और साथी भी है जिसका ताल्लुक रशिया से है और जिसका नाम अलेक्जेंडर एंड्रीविच पेनिन है। उसे पता चलता है कि उसी अलेक्जेंडर पेनिन ने हमजा को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया है जिसका नाम स्पाई आई है, जो कि एक वायरस की तरह काम करता है। और उसी सॉफ्टवेयर स्पाई आई को यूज करके हमजा बैंडलाज और अलेक्जेंडर पेनिन ने अमेरिका के तकरीबन 60 मिलियन कंप्यूटर्स को हैक कर रखा था। अब जबकि FBI का वो एजेंट हमजा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेता है तो अब उसे जरूरत थी हमजा को पकड़वाने की। इसके लिए वो एक मास्टर प्लान बनाता है जिसके जरिए वो हमजा को पकड़वा सके। वो हमजा बैंडलाज को बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से इस सॉफ्टवेयर स्पाई आई को बेचने की डील कर दी है। उस टेक कंपनी को ये सॉफ्टवेयर स्पाई आई बहुत ज्यादा पसंद आया है और वो सॉफ्टवेयर कंपनी इस सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कीमत अदा करने को तैयार है। ये सुनकर हमजा बहुत खुश होता है और वो फौरन कन्विंस हो जाता है इस सॉफ्टवेयर स्पाई आई को बेचने के लिए। यूं दूसरी तरफ FBI वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही हमजा बैंडलाज इस सॉफ्टवेयर स्पाई आई को बेचने आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। मगर उनकी खुशियों पर पानी तब फिरता है जब हमजा बैंडलाज डील से कुछ मिनट्स पहले ही वहां से भाग जाता है। ये देखकर FBI वाले बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं, मगर इस बार उन्हें इतना ज्यादा शॉक भी नहीं लगता क्योंकि उनके पास अब हमजा का सिर्फ नाम नहीं था बल्कि उसकी कुछ तस्वीरें भी थीं जिनको FBI की टीम पूरी दुनिया में फैला देती है ताकि हमजा जहां भी जाए पकड़ा जा सके। बात है 8 जनवरी 2013 की, जब हमजा बैंडलाज अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने मलेशिया जाता है। हमजा जानता था कि उसके पीछे दुनिया की सारी बड़ी ताकतें हैं, इसलिए वो अपने फोन को एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके और वो ज्यादातर सैटेलाइट फोन का यूज करता था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। अब उसे कायरा जाना था
तो वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां पर इंटरपोल का एक पुलिस ऑफिसर उसे और उसकी बीवी को देख लेता है और उसकी शक्ल को वो पुलिस ऑफिसर पहचान लेता है और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों को रोक लेता है। फिर हमजा अपने सारे हैकिंग अटैक्स के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को बताता है। हमजा बताता है कि उसने सारे हैकिंग अटैक्स खुद अकेले परफॉर्म किए हैं, इन सब में उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं, लिहाजा उसकी बीवी को जाने दिया जाए। इसके बाद हमजा की बीवी को छोड़ दिया जाता है और यूं 8 जनवरी 2013 को हमजा पकड़ा जाता है। फिर मई 2013 में हमजा को इंटरपोल के जरिए FBI को सौंपा जाता है। इसके बाद कोर्ट में हमजा का केस चलता है जिसमें FBI वाले हमजा के सारे हैकिंग अटैक्स की रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमजा तकरीबन 217 बैंकों से 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स को खाली करके अब तक तकरीबन $4 बिलियन की भारी रकम चुरा चुका था। इसके बाद हमजा को 15 साल की सजा सुनाई जाती है और तकरीबन 10 लाख US का जुर्माना किया जाता है। मगर जैसे ही हमजा को सजा सुनाई जा रही होती है तो उस वक्त कोर्ट में मौजूद सभी लोग हमजा के चेहरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमजा के चेहरे पर एक सुकून से भरी मुस्कुराहट होती है, जैसा कि उसने कोई बहुत ही बड़ा महान काम किया हो। ये देखकर जज हमजा से पूछता है कि वो आखिर इतना सुकून में क्यों है, हालांकि उसने तो बहुत बड़ा क्राइम किया है, मगर फिर भी वो इस वक्त सुकून में कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब देते हुए हमजा बोलता है वो इस वक्त सुकून और मुतमईन इसलिए है क्योंकि उसने आज तक जितने भी अमेरिकन्स के बैंक अकाउंट्स हैक किए हैं वो सब के सब मोस्ट रिच और पावरफुल बिजनेसमैन थे और उसने ये सारी रकम पैलेस्टीन और अफ्रीका के मजलूम लोगों को डोनेट कर दी है। लेकिन उसका तरीकाकार गलत था, जिसके लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। यूं इसके बाद FBI उससे मजीद इन्वेस्टिगेशन करती है और पैनन के बारे में पूछती है और यूं कुछ दिन बाद पैनन को भी पकड़ लिया जाता है। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हमजा बेंडलाज को खुफिया मकाम पर ले जाकर फांसी दे दी गई है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमजा जिंदा था और अपनी सजा काट रहा था। उस पोस्ट में जिस शख्स की तस्वीर थी उसका चेहरा हमजा बेंडलाज से काफी मिलता जुलता था, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मगर हमजा बेंडलाज का उस पोस्ट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अब आप हमजा बेंडलाज हैकर की मुकम्मल कहानी जान चुके हैं और अब आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या हमजा हैकर ने ठीक किया या गलत, और आपने इस कहानी से क्या इंस्पिरेशन और सबक हासिल किया। अपनी कीमती राय का हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।